Hello and welcome back to my channel, students. We are going to begin with a new chapter from the book First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. According to me, I think little bit difficult this chapter is for class 10 students, but if you understand, then this is the best chapter, right? And lots of competency based questions come from here. So let's not waste our time and begin with the chapter. Okay, students. So let's now dig into the chapter. Now, before going into the chapter, I want you to answer this question. The question is, what does true freedom actually looks like? Now, it's a very intense question, right? So, how we are going to answer it? We are going to trace through the life of an absolute legend. And who is this legend? This legend is Mandela himself, Nelson Mandela. We're going to study his life and the evolution he went through his life to understand the meaning of freedom. And that is where we are going to get our answer to this question. So let's move forward. Here is our game plan for today. So we need to know first what all you will be able to find in this video. First, we are going to deal with dawn of a new nation. Second, transition of power. Third, redefining true courage. Fourth, twin obligations, very important one, right? Various times the questions have come in CBSE from here. And fifth is oppressor versus oppressed, again very important for boards and pre-boards both. Now students, starting off with part 1, dawn of a new nation. What we are doing, we are grounding ourselves right in the historical context of May 10th, 1994. During this massive historic inauguration in Pretoria. So ये जो inauguration हुआ ये बहुत historic था Pretoria में. It is there in your NCERT book also. So to understand that, we need to study the timeline, right? To really get the sheer magnitude of this inauguration, we have to go back. So ये जो importance है इस inauguration का, इसको पढ़ने के लिए हमें history में जाना ज़रूरी है. Think about it, students. In the early 1900s, right after the bitter Anglo-Boer War, Anglo-Boer War का जिक्र आपके NCERT में भी हुआ है फर्स्ट फ्लाइट में. क्या हुआ Anglo-Boer War के बाद? A harsh system of racial domination was constructed. ठीक है, एक सिस्टम बन गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का. अब वहाँ से हम फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं थ्रू डेकेड्स ऑफ पेनफुल स्ट्रगल टू 1994. वो जो सिस्टम की वजह से इतना पेनफुल रहा अफ्रीका की जर्नी कि हम सीधे 1994 में आते हैं. एंड दैट इज़ वाई दैट पेनफुल जर्नी के वजह से ये इनाग्रेशन इतना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो एंटायर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम वॉज फाइनली ओवरटर्न्ड, बदल दिया गया बाय द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल इलेक्शंस एवर हेल्ड देयर. एक इलेक्शन हुआ जिसमें फुल्ली डेमोक्रेसी थी, ठीक है, और पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाला था. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. We came to know that the inauguration which was happening because after decades of dark oppression, a new and incredible triumph of democracy has happened, right? So now here is a vocabulary term. एक vocabulary term मैं दे रही हूँ. You absolutely must be able to define and explain on your exam. और ये जो vocabulary term है, आप इसको समझ जाओगे तो एग्जाम में इसको explain भी कर पाओगे. So apartheid. It is not just casual prejudice. It was deeply formalized political system that literally separated people by race. Apartheid एक ऐसा political system है जिसमें people लोगों को किसके basis पे differentiate किया जाता था? Race के basis पे, right? So Mandela points out that this created a profound lasting wound. और नेल्सन मंडेला ने हमें बताया कि ये जो अपार्थीड सिस्टम था, राइट, इसने क्या क्रिएट किया? एक ऐसा घाव अफ्रीकन्स के मन में, ऐसा घाव क्रिएट किया जिसको भरा नहीं जा सकता. सो वी नो कि ब्रिटिशर्स एंड वाइट पीपल का हमेशा से ये प्लान रहा था कि वो डिवाइड एंड रूल पे जाते थे. इंडिया में आए उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी
किया, यूनिटी ब्रेक करने का कोशिश किया. सेम थिंग दे वेंट टू अफ्रीका and they started to divide them on the basis of race, and that is what is called apartheid. So students, let's move into part 2, transition of power. Let's see how this incredible historical shift actually played out on the ground. So sometimes a massive political transition like this is a bit tricky to wrap your head around, right? ये जो transition हुआ white से लेके वाइट सुप्रीमेसी हट गई और ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट बना, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है. तो टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल. सो इमेजिन रिप्लेसिंग द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस व्हाइल द फैमिली इज लिटरली स्टिल लिविंग इनसाइड इट. एक घर का फाउंडेशन हटाना है जब उस घर के अंदर ऑलरेडी फैमिली रह रही है. ओके, नाउ सो वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दिस हाउस. फैमिली के रहते हुए हम इसको तोड़ेंगे नहीं. इंस्टेड we'll carefully slid in this new interlocking brickwork of Rainbow Nation. हम उसमें इंटरलॉक करेंगे, रहते हुए घर में रहते हुए फैमिली के हम उसमें चेंजेस लाएंगे, राइट? So how this apartheid will go away, how this white supremacy will go away, and the power will go into the black people. We'll see this. And what is this? And how is this done? So first democratic government was a brand new foundation. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट की लोगों ने, वही एग्जाम्पल है कैसे फैमिली के रहते हुए उस घर में उन्होंने बेस बदल दिया. यानी अफ्रीका में वाइट्स के होते हुए भी पीपल सेलेक्टेड हुम द ब्लैक प्रेसिडेंट. तो अ ब्रांड न्यू फाउंडेशन वॉज क्रिएटेड एंड दिस वॉज विटनेस्ड बाय ओवर 140 कंट्रीज लीडर्स. 140 कंट्री के लीडर वहां थे जब ये इनॉग्रल सेरेमनी हो रहा था वहां पे, राइट? जो एम्पी थिएटर था, यू कैन सी आई हैव मेड अ पिक्चर ऑफ एन एम्पी थिएटर. यहाँ पे पहले क्वीन बैठा करती थी, वाइट पावर, राइट? लवली सैंडस्टोन बिल्डिंग was literally the seat of white supremacy. But on inauguration day, after the democratic election, it transformed into a rainbow gathering of different colors and nation. उस जगह सिर्फ white people नहीं थे, हर color and creed के लोग वहाँ मौजूद थे अफ्रीका की वो लिबरेशन को सेलिब्रेट करने के लिए. It was a very powerful sight, right? स्टूडेंट सिर्फ ट्रांजिशन ऑफ पावर के बारे में जान लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज वी आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, वी नीड टू क्रिटिकली एनालाइज द स्पेसिफिक इमेजरी, राइट? जो इनॉग्रेशन के डे वहाँ पे पावर का डिस्प्ले हो रहा था इन अफ्रीका, वी नीड टू critically analyze it. So first of all, what was shown? First, those South African jets roaring overhead. अब जो लोग वहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी में थे उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स उनके सर के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं. क्या ये ऐसे शो ऑफ था? इट वॉज नॉट फॉर शो, इट प्रूव द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द न्यू डेमोक्रेसी. नए ब्लैक प्रेसिडेंट न्यू डेमोक्रेटिक अफ्रीका के को लॉयल्टी दिखा रही थी ये आर्मी कि हम अब आपके लॉयल हैं, वाइट्स के नहीं. सेकेंड थिंग अबाउट द हाइएस्ट जनरल सल्यूटिंग मंडेला. He literally notes that a few years prior, those exact men would have arrested him, right? So, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि अगर पहले की बात है, ये जो जनरल, मिलिट्री जनरल उनको आके सल्यूट कर रहे हैं, पहले यही लोग, सेम मिलिट्री ऑफिशियल्स, पहले इनको अरेस्ट करने में हिचकिचाते नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि पावर शिफ्ट हो गया है, सो दे आर नाउ सल्यूटिंग हिम एंड रिस्पेक्टिंग हिम. एंड फाइनली द टू एंथम्स ब्लेंडिंग टुगेदर. दो एंथम्स, जो पहले जो लोग एनिमीज थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सो फॉर्मर एनिमीज मिक्सिंग देयर वॉइसेस टू बिल्ड द न्यू फाउंडेशन, राइट? वो दोनों मिल करके अब नेशनल एंथम्स गा रहे हैं टू शो देयर यूनिटी. Such a powerful stuff, right? So now let's straight up go for section 3. Now, section 3 is going to redefine true courage. Now listen, this is a guaranteed exam topic, okay? Very important topic. यहाँ से question thousands of times CBSE में आ चुका है. So let's lock it in.
Through all his years of struggle, Mandela came to his profound realization. क्या realize हुआ मंडेला को? He says, I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. This is huge. जो ये बात उन्होंने बोली है कि courage fear का absence नहीं है, but जो उसके ऊपर जीत जाए, डर के ऊपर जो जीत जाए, उसी को courage कहते हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एड भी आता है माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है. दैट इज वॉट ही इज सेइंग. ओके, अब ये जो बात मंडेला ने बोली है, ये छोटी मोटी बात नहीं है. दिस इज ह्यूज. ही इज सेइंग दैट अ ब्रेव पर्सन इजंट समवन हु नेवर फील स्कैर्ड. दैट्स अ टोटल मिथ. True courage, which he saw firsthand in his comrades who faced unimaginable things without breaking, is defined by actively conquering that fear. उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो डरते हैं वो करेजियस नहीं होते. उन्होंने अपने ही आसपास अपने दोस्तों में, फ्रीडम फाइटर्स में ये देखा कि जो डर डर के उन्होंने फाइट किया है बट ब्रेक नहीं किया, मीन्स हार नहीं माना. That is what is courage. So which brings us to a really brilliant paradox, and we need to be able to infer it. Depth of operation की बात की उन्होंने. Students, we are dealing with very important topic, depth of operation, right? So Mandela said कि depth of operation creates height of character. बेसिकली क्या बोलना चाहे कि द हॉरिफिक ब्रूटैलिटी ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम एक्चुअली बैकफायर्ड फॉर द वाइट्स. वाइट सुप्रीमेसी ने क्या सोचा था कि अपार्थाइड लाएंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, लेकिन ये बैकफायर कर गया, उनके जस्ट ऑपोजिट चला गया. जैसे उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं. इट अनइंटेंशनली फॉर्ज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलियंट लीडर्स. इस प्रेशर की वजह से ये जो अत्याचार अफ्रीकन के ऊपर होने लगा रेस के बेसिस पे, बहुत सारे लीडर्स बाहर आने लगे. ठीक है, रिबेल करने लगे, बगावती होने लगे लोग. एंड द सिस्टम डिजाइन टू क्रश पीपल एंडेड अप प्रोड्यूसिंग लीडर्स फाइनर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स बीनीथ द सॉइल. सो जो सिस्टम बना था कि लोगों को क्रश कर दिया जाएगा, उनको तोड़ दिया जाएगा, उनको सताया जाएगा, एक्चुअली में क्या हो गया, उस प्रेशर को सहते 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 अफ्रीकन्स क्या बन गए, डायमंड में कन्वर्ट हो गए, लीडर्स बन के आ गए और स्ट्रांग होते गए टू फाइट बैक द वाइट पीपल. एंड फ्रॉम हियर लेट्स मूव टू पार्ट 4. Students, you need to be very attentive here because this is the most important page and portion. इस यहाँ से question thousands of time again आ चुका है. So part 4 we are going to deal with Mandela's twin obligations. ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये दोनों जुड़वा चीज़ें हैं जिनके वो कर्जदार रहेंगे जिंदगी भर. Obligation is कर्ज पे दब जाना किसी के. ठीक है. So let's take a look at the immense personal cost of this leadership. एक लीडर बनने के लिए कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ पर्सनल चीज़ें, राइट? लेकिन आप उसके कर्ज तले दब जाते हो. मंडेला आर्ग्यूज दैट एवरी पर्सन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, राइट? मंडेला बोलते हैं हर इंसान जो पैदा हुआ है उसके 2 ऑब्लिगेशन है. One is to your family, your parents, your spouse, your kids. The other is to your people and your country. आप किसके कर्ज तले दबे होते हो? एक अपनी फैमिली के, अपने मम्मी पापा, अपने वाइफ या हस्बैंड, क्योंकि वो लोगों का बहुत सपोर्ट होता है, देन ओनली यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल. दूसरा अपनी कंट्री का भी, यू हैव एन आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ योर कंट्री, राइट? एंड द ट्रेजेडी इज इन अ नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी यू कैन बैलेंस बोथ. अगर सोसाइटी एकदम नॉर्मल है, सब चीज़ अच्छे से चल रहा है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको किसी के अगेंस्ट फाइट नहीं करना है. आप अपने फैमिली की भी इच्छा पूरा कर सकते हो, कुछ सैलरी कमाओ, खर्चा करो अपने माँ बाप के ऊपर, उनके जो उन्होंने आपको बचपन से पाला है उसका कर्ज उतारो, अपनी कंट्री के लिए करो. यू कैन डू इट इन अ नॉर्मल सोसाइटी, राइट? लेकिन जिस सोसाइटी में अपार्थाइड है, क्या ये पॉसिबल था? नहीं. If a man of color
tried to serve his people, he was isolated and punished. जब whites oppress कर रहे थे, supremacy में थे, तो जो कलर पीपल हैं, ब्लैक पीपल, अगर वो ये सब करने की कोशिश करते भी थे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, अकेले कर दिया जाता था और पनिश किया जाता था. So by choosing his country, Mandela was tragically ripped from his family, forced into a twilight existence of secrecy. He didn't want to abandon them, but the cause demanded it. राइट जब मंडेला ने सोचा कि वो अब अपनी कंट्री के लिए फाइट करेंगे, फ्रीडम के लिए, तो उनको क्या कर दिया गया, उनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा. वो ऐसा चाहते नहीं थे. सो इसी वजह से एग्जामिनर्स जो होते हैं वो एब्सोल्युटली लव दिस नेक्स्ट प्रोग्रेशन. सो डेफिनेटली जॉट दिस डाउन. आप ज़रूर इसको नोट करें बिकॉज एग्जामिनर्स इस चीज़ को पसंद करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछना. Now you need to trace how his understanding of freedom evolved. और ये क्वेश्चन इस साल आ चुका है कि मंडेला की फ्रीडम कैसे इवॉल्व हुई फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. फ्रीडम का हर स्टेज पे उनके अनुसार मतलब अलग था. सो स्टूडेंट्स, you need to jot this down in your copy. Okay, so let's move to the next slide to understand this. This is also one of your most important page from where thousands of time questions have come. Now this page tells you Mandela's understanding of freedom from his childhood to adulthood. So let's see how his thought over freedom evolved. कैसे changes हुआ मंडेला के दिमाग में. पैदा होते ही तो फ्रीडम फाइटर नहीं बन गए होंगे. फ्रीडम के बारे में समझ में आ रहा होगा धीरे 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 धीरे, तभी बन रहे होंगे. राइट. स्टेप 1 था एज अ बॉय. इट वॉज एन इल्यूजन. फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन की तरह था. क्यों? क्योंकि जब बच्चे थे ही थॉट ही वॉज फ्री इफ ही जस्ट ओबेड हिज डैड. बस अपने पापा की बात मानो और बाकी जो करना है करो. दैट इज वॉट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू हिम वॉज. नेक्स्ट स्टेप 2, एज अ स्टूडेंट जब थोड़ा और बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करने लगे, ही जस्ट वॉन्टेड ट्रांजिटरी फ्रीडम. छोटी मोटी फ्रीडम चाहिए थे. यू नो लाइक स्टेइंग आउट लेट, घर के बाहर रात भर बाहर रहो, कोई रोक टोक ना हो. दैट इज फ्रीडम. राइट. स्टेप 3, एज अ यंग मैन ही वॉन्टेड ऑनरेबल फ्रीडम, अर्निंग अ लिविंग, गेटिंग मैरिड. जब पढ़ाई लिखाई कर लिया, थोड़े बड़े हो गए, यंग मैन हो गए, अब कैसी फ्रीडम चाहिए थी? अब फ्रीडम चाहिए थी जिसमें नौकरी करें, पैसे कमाएं और एक शादी हो जाए, बस फैमिली बना ले. स्टेप 4, एज अ लीडर. Now he realized freedom is indivisible. This is here we have come to an important portion. लीडर जब बन गए तो उनको पता चला कि फ्रीडम क्या है, इनडिविजिबल है. यानी फ्रीडम को आप बांट नहीं सकते. बचपन में, बड़े होने के बाद इस तरीके से आप बांट नहीं सकते. एंड he couldn't be free if his people weren't chained. That realization changed everything, right? And he's thinking कि अगर उनको फ्रीडम मिल रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब फ्री है. अगर एक भी इंसान को फ्रीडम उनसे छीन ली गई है उनके कंट्री में या कहीं भी, इफ एक भी इंसान की फ्रीडम, बेसिक फ्रीडम छीन ली गई है, मतलब सबकी फ्रीडम छीन ली गई है. सो दैट इज वॉट ही अंडरस्टूड कि फ्रीडम इनडिविजिबल है. आप डिवाइड नहीं कर सकते कि इसको फ्रीडम दो उसको नहीं दो. सो दैट ही रियलाइज्ड एज ही बिकेम द लीडर. Students, we have come to an absolutely one of the most important point, that is part 5, the oppressor and the oppressed. Honestly, ये जो पोर्शन है ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड का, यहीं से एनालिटिकल टेकअवेज विल कम. अगर एनालिसिस करना है, क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ से बनता ही बनता है क्वेश्चंस. So you people have to contrast these two groups to elucidate Mandela's point. अगर मंडेला के पॉइंट को समझना है फ्रीडम के बारे में, तो आपको ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बीच के डिफरेंस को समझना होगा. We all easily grasp that the oppressor are robbed of freedom, physical chains, right? So जो ऑपरेसर होता है, जिसको डोमिनेट किया जा रहा है, अफ्रीका में वाइट लोग किस बेसिस पे डोमिनेट कर रहे हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कि तुम लोग ब्लैक हो, यू आर नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द इक्वल राइट्स. ठीक है, तो उनको ऑपरेस किया जा रहा था. ये तो दिख रहा है कि वाइट लोग ब्लैक्स को डोमिनेट कर रहे थे, ये तो क्लियरली दिख रहा है.
राइट। लेकिन मंडेला मेक्स दिस रैडिकल क्लेम, मंडेला ने एक और बात कह दी इसी में। ही सेज द ऑप्रेसर नीड्स लिबरेशन टू। ऑप्रेस तो दबे हुए हैं ही, लेकिन उनको जो दबा रहे हैं ऑप्रेसर, वाइट पीपल, उन लोगों को भी फ्रीडम चाहिए। अरे भाई, उनको क्यों फ्रीडम चाहिए? तो यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मंडेला ने बताया कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड लॉक्ड बिहाइंड द इनविजिबल बार्स ऑफ प्रेजुडिस। जो इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है, जबरदस्ती का, बिना मतलब का, उसको कलर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे उसको सता रहा है, तड़पा रहा है, बहुत स्लेव का बना रहा है अपना, तो अगर कोई ऐसा इंसान किसी के साथ कर रहा है और उसको मजा आ रहा है, उसको खुशी हो रही है किसी को पेन पहुंचा के, तो क्या वो इंसान मेंटली फ्री है? क्या वो इंसान मेंटली नॉर्मल इंसान है? नहीं। वो खुद किसका प्रिजनर है? हेट्रेड का, जेलेसी का, प्रेजुडिस का। सो नॉर्मल उसके थॉट्स है ही नहीं, बेचारा खुद भी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, राइट? दैट इज व्हाट मंडेला इज सेइंग। Because of this, apartheid tragically robbed absolutely everyone. ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर आर अलाइक। मंडेला ने बोला जो ऑप्रेस्ड हैं, जिनके ऊपर डोमिनेशन हो रहा है, और ऑप्रेसर हैं जो डोमिनेशन कर रहे हैं, दोनों सेम हैं। बिकॉज दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों के अंदर से ह्यूमैनिटी चली गई है। एक बेचारा के पास राइट नहीं है कि वो अपने ड्यूटीज को फुलफिल कर सके, उसको तो सताया जा रहा है। दूसरा, जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, सोशलाइज करना, वो कर नहीं पा रहा है, दिमाग में उसके नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, इसीलिए दोनों ही सताए हुए हैं, दोनों इक्वल हैं, राइट? दोनों को इक्वल प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज व्हाट मंडेला सेड। मंडेला डजंट स्टॉप्स हियर। ही राइट्स, people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. हेट आपको सिखाया जा सकता है, क्योंकि आप बचपन में जब पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको हेट सिखा करके भेज रहे हैं। आपको यहाँ सिखाया जाता है कि कलर के बेसिस पे हेट करना, रिलीजन के बेसिस पे हेट करना, या कंट्री के बेसिस पे हेट करना। यू आर टॉट हियर, अदरवाइज आप एक ब्लैंक स्लेट की तरह आते हो, राइट? तो जब आपको हेट सिखाया जाता है तो आपको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, राइट? लेकिन मोस्टली पावरफुल नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी हो जाती है, इसलिए लोग ज्यादा हेट जल्दी सीख जाते हैं, ओके? बट मंडेला, इवन इन हिज डार्केस्ट, एब्सोल्यूट डार्केस्ट डेज, जब वो प्रिजन में थे, सबसे डार्क, सबसे बैड टाइम्स ऑफ मंडेला, जब उन्होंने अपना होप लूज करना शुरू कर दिया था, राइट? ही वॉज पुश टू हिज लिमिट्स। इतना टॉर्चर उनको दिया जा रहा था कि वो अपने लिमिट्स के बाहर निकल गया था टॉर्चर। ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन इट, येट ही वॉज एबल टू सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अ गार्ड। वहां पे ही थोड़ा सा किसी ने उन पे दया दिखा दिया था, उस प्रिजन में ही एक गार्ड ने उनसे थोड़ी दया से, प्यार से बातें कर ली, और वही दया उनको थोड़ा सा होप दिला दिया। And goodness is a flame that might be hidden, but it can never ever be fully extinguished. उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर गुडनेस होता है, एक फ्लेम की तरह। जो मोमबत्ती की फ्लेम होती है ना, कमजोर होती है, राइट? आप उसको कभी बुझा नहीं सकते। हाँ, वीक हो सकती है वो, लेकिन आप उसको बुझा नहीं सकते। वैसे ही उनका मानना है कि जो वाइट लोग परेशान कर रहे थे ब्लैक्स को, क्या सच में वो अंदर से विलेन थे? इतना हेट्रेड भरा था। हो सकता है उनके अंदर भी दया की भावना आती होगी कभी कभी, बट उन लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश की, राइट? पर क्या ऐसा होता होगा, आप किसी को जबरदस्ती बिना मतलब का टॉर्चर करो और रात को नींद आपको अच्छी आ जाए, आपको थोड़ा सा भी बुरा फील ना हो? यही उनका कहने का मतलब था कि everybody has a good human being inside them, only the thing is they try to suppress it, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। Now let's move to the next portion, a summary. Let's do a recap. So these are your core competency based takeaways, ठीक है? 1, the transition from white supremacy to a rainbow nation. जो competency based takeaways क्या है ये चैप्टर का? फर्स्ट, पहले
व्हाइट सुप्रीमेसी से कैसे हमने एक नेशन को ट्रांसफॉर्म किया रेनबो नेशन में, ठीक है, ऑल द कलर ऑफ पीपल वर रिस्पेक्टेड। सेकेंड वन इज टू करेज मीन्स कॉन्करिंग फियर नॉट लैकिंग इट। करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, जबकि डर को जीत जाना ही करेज कहते हैं, राइट। नाउ थर्ड वन इज फ्रीडम इज एन इवॉल्विंग इनडिविजिबल कॉन्सेप्ट। फ्रीडम क्या है? इवॉल्व होता रहता है, उसका मीनिंग चेंज होता रहता है हर इंसान के लिए। और फ्रीडम इनडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। एंड फॉर बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड रिक्वायर लिबरेशन। दोनों, जो ऑपरेसर है जो किसी को डोमिनेट कर रहा है और जो ऑपरेस्ड है जिसके ऊपर डोमिनेशन हो रहा है, दोनों को फ्रीडम जरूरी है। एक को फिजिकल फ्रीडम, एक को मेंटल फ्रीडम, राइट। So I will leave you with this final provocating question to ponder before you test. Are you truly free if you are taking away someone else's freedom? क्या आप सच में फ्री हो अगर आप किसी और की फ्रीडम छीन रहे हो, किसी भी तरीके का फ्रीडम किसी से छीन रहे हो? तो क्या सच में आपके माइंड फ्री है, शांत है? क्या उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है? क्या किसी को सताने में आपको मजा आता है? अगर ऐसा होता है तो क्या सच में आप मेंटली स्टेबल इंसान हो, फ्री हो? अकॉर्डिंग टू मंडेला, एब्सोल्युटली नॉट। मंडेला के अकॉर्डिंग तो नहीं हो आप मेंटली फ्री। फिजिकली आप फ्री जरूर दिख रहे होगे, लेकिन मन से तो आप शांत नहीं हो। Well, I hope this video gave you the deep critical analysis you needed. So keep studying, stay curious, and you're going to totally crush those board's questions. Let's catch in the next video. Thank you.